Hello, dear student. I'm Sumaya. How are you? I hope you all are fine to your home. Today, I'm going to teach your first chapter of science of plant life. Sorry, I could not upload video on account of some network issue. Students, as I taught you on that video about plant life, but I could not make you convince lengthy. Today I will discuss on first chapter of plant life. First of all, we will learn how to read. Let us learn how to read the lesson fluently. You have to concentrate. How do I read every line and where do I stop and pause between the lines? The name of the lesson is Plant Life. In this lesson, we will learn the types of a plant, the function of different parts of a plant and photosynthesis. Let's begin. Join the words to make compound words. Can you recall what they mean? In this book, we are getting some words we will change into compound words. Let's make it. Ever plus green is equal to evergreen. Flower plus bed is equal to flower bed. Green plus house is equal to greenhouse. Pine plus cone is equal to pine cone. Red plus wood is equal to red wood. Sow plus bean is equal to sow bean. Sun plus flower is equal to sunflower. Toad plus stool is equal to toadstool. Tumble plus weight is equal to tumbleweed. Wild plus flower is equal to wildflower. I will tell you the meaning of these compound words. The first is evergreen. The meaning of evergreen is bearing foliage throughout the year. Flower bed, a bed in which flowers are grown. Greenhouse, a building with glass walls and roof. Pine cone, the seed producing cone of a pine tree. Red wood, soft reddish wood. Sow bean, a source of oil used for forage. Toadstool, common name for inedible. Tumbleweed, any plant that breaks away from its root in autumn. Wildflower, uncultivated flowering plant. Sunflower, a very tall plant with large yellow flowers often grown for its seeds and their oil which is used in cooking. You will note in your notebook. We will learn about the parts of a plant. The parts that grow under the ground is called root. The parts which grow above the ground is called stem. Stem bears many branches, fruits, leaves and flowers. Leaves prepare food for whole part of the plant. Flowers attract bees and insects. Fruits is a juicy part of a plant. Big, small, bushy etc. Most plants are green in color. बड़े छोटे जंगली वगैरह वगैरह सब पौधे क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं. उनका रंग क्या होता है? हरा होता है. क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल की वजह से वो लोग हरे रंग के नज़र आते हैं. पौधों का दे कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज. पौधे अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज और शेप के होते हैं. Some plants grow very tall while some remain small all their lives. कुछ पौधे बहुत लंबे ऊंचे उगते हैं, कुछ छोटे ही रहते हैं हमेशा के लिए. ट्रीज मीन्स होता है पेड़. ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स. पेड़ बड़े और लंबे पौधे को पेड़ कहते हैं. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड ब्रांचेस. ये लोग का बहुत ही मजबूत और सख्त डालियाँ होती हैं. द मेन स्टीम ऑफ ट्री इज़ वेरी थिक एंड वुडी. जो खास तना होता है पेड़ का वो बहुत ही मोटा और लकड़ीदार होता है. इट इज़ कॉल्ड ट्रंक, जिसे हम लोग ट्रंक कहते हैं. ब्रांचेस में होता है डालियाँ. थिक यानी कि मोटा, वुडी यानी कि लकड़ीदार.
ट्रंक, जो मेन स्टेम होता है उसी को ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक यानी कि तना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज आर बनियान ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, पीपल ट्री। कुछ पेड़ के एग्जाम्पल क्या क्या है? बनियान का पेड़, नीम पेड़, कोकोनट का पेड़ और पीपल का पेड़। ट्रीज आर होम्स टू मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। पेड़ बहुत सारे जानवरों, कीड़े मकोड़ों का घर है। वह लोग बहुत सालों तक पेड़ पे रहते हैं। हम लोग अपने आसपास पेड़ देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं? चिड़िया लोग घोंसला बनाती हैं। चिड़िया का क्या होता है? वो पेड़ घर होता है। शब्स। शब्स आर बुशी प्लांट। शब्स में होता है झाड़ियाँ। शब्स क्या होते हैं? जंगली पौधों को हम लोग शब्स कहते हैं। वह लोग जो जंगली, ये शब्द जो होते हैं वो बहुत लंबे नहीं उगते हैं। वह लोग की बहुत सारी डालियाँ होती हैं। दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। इनकी जो डालियाँ होती हैं ज़मीन से सटी नज़दीक होती है। शब्स लीव फॉर अ फ्यू ईयर्स। झाड़ियाँ सिर्फ कुछ सालों के लिए ही रहती हैं। जैसे कि शब्स में क्या, कौन सम एग्जाम्पल्स ऑफ शब्स आर, मेहंदी हो गया। मेहंदी भी क्या है? एक जंगली प्लांट है। कॉटन, उसके बाद हिबिस्कस, रोज़। हब्स में होता है जड़ी बूटी। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। जड़ी बूटी बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टीम। इनका जो तना होता है बहुत नर्म और बहुत ही नाजुक होता है। हर्ब्स मोस्टली लीव फॉर अ ईयर। हर्ब्स सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ही रह सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर मिंट, स्पेनिच, ग्रास, कोरिएंडर। क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टीम। क्लाइंबर्स ऐसे पौधे जो चढ़ाई करते हैं उसे हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स का तना बहुत ही कमज़ोर होता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। ये लोग को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है सीधे खड़े रहने में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर, कुछ क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हुए? ग्रेप पाइन, मनी प्लांट, कुकुम्बर, बीटर गार्ड। ये सब क्या है? क्लाइंबर्स का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। क्रीपर्स आर ऑल्सो प्लांट्स विथ वीक स्टीम्स बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स यानी रेंगने वाले पौधे जो होते हैं उनका तना बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वह लोग ज़मीन के साथ ही क्या होते हैं? बढ़ते हैं। We will know the parts of a plant. The function of root. The function of root is the root holds the plant firmly to the ground. जड़ पौधे को ज़मीन में मजबूती से पकड़ के रखता है। स्टीम। द फंक्शन ऑफ स्टीम इज द स्टीम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट अबव द ग्राउंड। तना का क्या काम है? तना पौधे को सीधे खड़े रहने में मदद करता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट प्रिपेयर फूड द होल प्लांट। पत्तियाँ जो होती हैं पूरे पौधों के लिए खाना तैयार करती है। फ्लावर। द फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज एंड अदर इंसेक्ट। फूल मक्खियों को, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती हैं। दे ग्रो इनटू फ्रूट। और ये लोग फल में तब्दील हो जाती है, फल बन जाती हैं। द फ्रूट्स कंटेन सीड इन देम। बीज, फ्रूट में क्या होता है? बीज होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं सम फ्रूट, जैसे कि एप्पल में भी क्या होता है? सीड होता है। मैंगो में भी सीड होता है। वाटरमेलन में भी सीड होता है। द सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो बीज होते हैं वो नए पौधे में बदलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं, हवा, पानी, सूरज की रोशनी के मदद से। द रूट्स कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। जड़ ज़मीन से पानी इकट्ठा करता है। दिस वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द स्टीम। जो जड़ पानी इकट्ठा करता है, ये पानी पूरे पत्तियों तक कौन लेके जाता है? तना लेके जाता है। द लीव्स ट्रैप द लाइट ऑफ द सन। पत्तियाँ सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेती है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके खाना तैयार करती है।
यानी कि पौधे जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द फूड मेड बाय लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो पत्तियां जो खाना तैयार करती है वो क्या होता है, बाद में पूरे पौधे के पूरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, लीव्स, स्टीम, सीड्स etc that are eaten by humans and animals। जो फालतू खाना होता है वो किस में इकट्ठा हो रहता है, फल में, पत्तियों में, तना में, बीज में, जिसको इंसान और जानवर खाते हैं। लेट्स रिवाइज। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ पौधे बड़े और कुछ छोटे होते हैं। ट्रीज आर बिग प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग ट्रंक। पेड़ बड़े पौधे को कहते हैं जिनका मजबूत तना यानी तना होता है। Shrubs live for a few years। झाड़ीदार पौधे सिर्फ कुछ सालों के लिए रहते हैं। Herbs live for a short time। हर्ब जो होते हैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहते हैं। Climbers and creepers have weak stem। क्लाइंबर्स और क्रीपर का बहुत ही कमज़ोर तना होता है। Roots hold the plant into the soil। जड़ पौधे को जड़ पौधे को मिट्टी में पकड़ के रखता है। Leaves make food for the plant। पत्तियां पौधों के लिए खाना तैयार करती हैं। Fruits have seeds in them। फल में बीज होता है। Seed grow into new plants। बीज नए पौधे में बदल जाते हैं, जिसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। Trees they are big plants with strong branches। बड़े पौधे जिनकी डालियाँ बहुत मजबूत होती हैं, उसे हम लोग ट्री कहते हैं। Students, you will remember this। Shrubs they are small and bushy plant। Shrubs छोटे और जंगली पौधे को कहते हैं। Herbs they are small plants with very big stem। ऐसे पौधे जिनके जो क्या होते हैं, जिनके तना बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। Climbers they are plants with big stem that need support to climb। ऐसे पौधे जिनका तना बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसको चढ़ाई करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। Creepers they are plants with very weak stem that grow along the ground। ऐसे पौधे जिनकी तना बहुत कमज़ोर होता है और जो ज़मीन के साथ बढ़ते हैं। Photosynthesis the process by which the leaves make food for the plant। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पत्तियां खाना तैयार करती हैं पूरे पौधों के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेट्स रिकैपिटुलेट, यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसको बनाना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, दोहराइए इसको। वी आर गेटिंग सम ब्लैंक्स इन पेज नंबर 12। ब्लैंक लीव फॉर मैनी ईयर्स। विच लीव फॉर मैनी ईयर, जो बहुत लंबे समय तक रहता है, क्या रहता है, पेड़ यानी कि ट्री बहुत सालों तक रहता है। ब्लैंक हैव मैनी वीक एंड डेलिकेट स्टीम, किसका बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही नाजुक तना होता है, हर्ब्स का यानी कि जड़ी बूटियों का। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, रेंगने वाले पौधे होते हैं, ज़मीन के साथ बढ़ते हैं। नंबर 4, वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर्स के उदाहरण क्या क्या हुए, वाटरमेलन यानी कि तरबूज और पम्पकिन यानी कि कदीमा ऐसे पौधे हैं, एक एग्जाम्पल है क्रीपर्स के। ब्लैंक इज अ बुशी प्लांट, कौन जंगली पौधा है, एक मेहंदी क्या है, एक जंगली पौधा है। डियर स्टूडेंट, यू विल नोट इन योर नोटबुक, turn out your page number 15 and practice time. Take the correct option. You will write in your notebook copy. Okay. Are blank leaves for many years. In page number 15 we are getting 4 options, and the which is correct we will have to tick. There are 4 options. Are blank leaf for many years. Which leaf for many years? Tree, herb, creeper और क्लाइंबर। क्या सालों तक रहता है, पेड़ क्या होता है, बहुत सालों तक रहता है। नंबर 2, ब्लैंक ट्रांसपोर्ट वाटर टू द प्लांट। क्या यहाँ वी आर गेटिंग 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज रूट, स्टीम, फ्लावर एंड शीट। कौन पौधों तक पानी को पहुँचाता है,
स्टीम, स्टीम यानी कि तना, तना क्या करता है, पूरे पौधों तक पानी को पहुंचाता है। नंबर 3, a blank has a very weak stem. We are getting 4 ऑप्शन। द फर्स्ट इज लीफ यानी कि पत्ती, क्लाइंबर चराईदार पौधे, शब्स झाड़ियाँ, ट्री पेड़। विच हैज़ अ वेरी वीक स्टीम, इस चारों में से किसके पास कमज़ोर तना होता है, क्लाइंबर, क्लाइंबर का बहुत ही कमज़ोर तना होता है। नंबर 4, ब्लैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ शब, यानी झाड़ीदार पौधे का क्या एग्जाम्पल है, नीम, मिंट, रोज़, वाटरमेलन। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे रोज़, रोज़ क्या है, रोज़ एक शब है, शब प्लांट है, शब्स यानी कि झाड़ीदार पौधा। And number 2, fill in the blanks with the words from the box. We are getting some words. I forgot to make this into the box. Okay, and you will get in page number 15. We are getting some words: leaves, banyan, fruits, shrubs, herbs. Number 1, a is a bushy plant. We are getting the 5 option which is correct. A leaf, banyan, fruit, shrubs और herb. कौन एक बुशी प्लांट यानी कि यानी कि जंगली पौधा है, कौन सा एक जंगली पौधा है, पत्ती, बनियान, फल या जड़ी बूटी या तो फिर झाड़ियाँ, झाड़ियाँ क्या है, एक जंगली पौधा है। नंबर 2, ब्लैंक लिव फॉर अबाउट 1 ईयर, इसमें ये चारों में से कौन सिर्फ 1 साल तक रहता है, कौन सा रहता है, शब रहता है, फ्रूट रहता है, बनियान, लीफ क्या, हब्स, हब्स क्या रहता है, सिर्फ 1 साल तक रहता है। नंबर 3, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट, फूल किस में बदल जाते हैं, फल में। नंबर 4, द ब्लैंक प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, क्या पत्तियों के लिए खाना, पौधों के लिए खाना तैयार करता है, कौन तैयार करता है खाना, पत्ती। लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, पत्ती पूरे पौधों के लिए खाना तैयार करती है। नंबर 5, बनियान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री, बनियान क्या है, एक पेड़ का एक उदाहरण है। You will write on your notebook copy. In next video, I will make the group C, D and E. Thank you. This is enough for today.